Hello and welcome to my channel Manish Kumar with my important topics. Today, this is my second part of the video regarding the series of marketing which I started a few minutes earlier. And today I am going to discuss about the need of resources for fulfillment of physical supply. I repeat, need of resources for fulfillment of physical supply. Under this, I have told you earlier that there are 5 topics like storage, as I am dealing with storage right now, and apart from it, there are total 5 things which needs to be taken into consideration as far as the need of resources are concerned. What are those 5 things? Transportation, storage, standardizations, risk and market finance, as well as market information. In my previous video, I have discussed about transportations, which was the first need of resources for fulfillment of physical supply of goods. And now I am going to discuss about the second need of resources, which is storage, right? So storage, first of all, I want to tell you that what is the definitions of the storage. So according to Rev Jan, right, he is the famous prominent scientist, you can say. So according to Rev Jan, storage is an, you just take a pen and paper, write in your copy like that. Storage is an experiment of human forecasting by which goods or products are kept safe at any cost and brought forward at the time of scarcity. So this is the definition which is given by Rev Jan, right? And now I'm going to tell you the definition which is given by according to Dowsley, Clark and Clark. So definition of storage given by Dowsley, Clark and Clark is storage is process of keeping and protecting the goods. That's all. तो ये तो होगी इंग्लिश में इसकी डेफिनेशंस. अगर हम हिंदी में इसकी डेफिनेशंस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू रेवजान, स्टोरेज का मतलब होता है संग्रह. संग्रह मानवीय दूरदर्शिता का प्रयोग है जिसके द्वारा वस्तुओं को हर हालत में सुरक्षित किया जाता है तथा अभाव के मौसम में उपयोग के लिए आग्रह के समय आगे ले आया जाता है. और इसी का अगर हम डाउस्ले, क्लार्क एवं क्लार्क का हिंदी डेफिनेशन देखें तो संग्रह, माल रखने व रक्षा करने की एक प्रक्रिया है. दैट्स इट. So this is the both of the definition which is given by Revijan and Dowsley, Clark and Clark as far as the storage part is concerned. Now, importance and need of storage under marketing. Importance and need of resources under marketing is been I am going to tell you the 7 points. You just write each point. First is seasonal production. Second, seasonal demand. Third, equilibrium in demand and supply. Fourth, quality of goods. Fifth, saving in transportation. Sixth, fulfillment of urgent need. And seventh, to sell goods at profit. So this is the importance, or we can say this is the need of keeping storage or doing storage under the marketing. So first one was seasonal production. कुछ ऐसे भी गुड्स हमारे पास होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर सीज़न के लिए होते हैं, लेकिन उसका जो प्रोडक्शन है वो 12 मंथ फुल ऑन ईयर होता है. तो हमको सिर्फ उसी मौसम में उस प्रोडक्ट को निकालना है, तो हमें उसे स्टोर करना पड़ेगा. सो फॉर दैट ओनली स्टोरेज इज़ नेसेसरी. सेकेंड, सीजनल डिमांड. कुछ वस्तुओं की डिमांड ही किसी एक पर्टिकुलर सीज़न में होती है, जैसे रज़ाई, क्विल्ट. तो इसकी डिमांड हमेशा ठंडी के मौसम में रहती है, लेकिन अगर हम ठंडी भी बनाना शुरू करेंगे तो हम बेचेंगे कब? तो हम इसे गर्मियों के भी मौसम में इसकी हम प्रोडक्शंस करते हैं. थर्ड, इक्विलिब्रियम इन डिमांड एंड सप्लाई. यस, स्टोरेज अगर हम करके रखेंगे, गुड्स रखेंगे, तो जब इसकी डिमांड होगी उसी वक्त हम उसकी सप्लाई भी कर देंगे, तो दोनों के रेशियो में ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, दोनों इक्वल रहेंगे. फिर है क्वालिटी ऑफ गुड्स. सम गुड्स क्वालिटी बिकम्स गुड एज द टाइम पासेस. कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा समय के बाद वो और अच्छे बनते रहते हैं, जैसे चावल यानी कि राइस, और या फिर वाइन्स यानी कि शराब. इन सब चीज़ों की जो क्वालिटी होती है वो दिन पर दिन अच्छी होती जाती है. फिर है फिफ्थ पॉइंट, सेविंग इन ट्रांसपोर्टेशन. सिक्स्थ है फुलफिलमेंट ऑफ अर्जेंट नीड. यस, अगर स्टोरेज है मेरे पास, बल्क में स्टॉक्स रखें, तो हमको जब भी अर्जेंट नीड रहेगी हम उसे फुलफिल कर देंगे. एंड सेवन विच इज़ लास्ट इज़ टू सेल गुड्स एट प्रॉफिट. जब हम स्टोरेज करके रखे रहेंगे, जब उसकी डिमांड बढ़ेगी तब हम उसको प्रॉफिट पे बेच सकते हैं. तो ये सब 7 पॉइंट्स है एज फार एज द इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ स्टोरेज अंडर मार्केटिंग इज कंसर्न. नेक्स्ट इज सिम्टम्स ऑफ गुड स्टोरेज. आदर्श संग्रह के प्रमुख लक्षण क्या हैं?
कैसे हम कर सकते हैं कि नहीं, ये स्टोरेज जो कर रहा है आदमी ये अच्छा है, जिसमें पहला होना चाहिए टेक केयर ऑफ गुड्स, माल की उचित देखभाल। टेकिंग केयर ऑफ गुड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क बिकॉज सम गुड्स गॉट डिस्ट्रॉयड एज फार एज द इफ द प्रॉपर केयरिंग इज़ बिन नॉट डन। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं अगर उसकी अच्छे से देखभाल नहीं की, जैसे चूहा काट दिया, रेड बटिंग इज़ बिन डन, या फिर फंगी लग गया। तो इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। बरसात के मौसम में गुड्स ख़राब भी हो सकते हैं, तो इस सब मौसम में हमें किस किस तरीके से क्या क्या इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी उसका प्रॉपर ध्यान रख के अपने गुड्स की अच्छे से केयरिंग करना, ये फर्स्ट है। सेकंड, गुड्स केप्ट एट करेक्ट प्लेस, सही स्थान पे गुड्स को रखना। स्टोरेज का मतलब ही ये होता है कि हम इस अपने सारे सामान को एक ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम इन द सेंस ऑफ बारिश, मतलब कि करेक्ट प्लेस, चोर उचक्कों के से सावधान रहें, बारिश से सावधान रहें, जहाँ पे फ्लड का कोई चक्कर ना हो। इन सब चीज़ों से हमें अपने गुड्स को सही स्थान पे रखना पड़ेगा। फिर है हमारा थर्ड आता है जो कि लास्ट है, गुड कंट्रोल ओवर स्टोरेज ऑफ गुड्स। गुड कंट्रोल ओवर स्टोरेज ऑफ गुड्स, सही कंट्रोल अगर हम अपने स्टोरेज पे रखेंगे तो सही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, कभी कभार हम अपने गुड्स को स्टोर करते रहते हैं और जो जब हम बल्क में स्टोर करते रहते हैं कंटिन्यू प्रोसेस करता है, तो मेरा गुड्स अंदर स्टोरेज में भी, वेयर हाउसेस में भी ख़राब होता है। तो हमारे पास कंट्रोल रखना चाहिए कि हमें एक प्रॉपर रेशियो से ही गुड्स को स्टोर करना पड़ेगा। अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ स्टोरेज कॉरपोरेशन। इसमें पहला आता है नो प्रॉफिट टू द फार्मर्स। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द स्टोरेज वर्क डन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, सो ऑल द फार्मर्स गेट प्रॉफिट ऑफ दैट, बट नाउ रिटेलर्स आर इन्वॉल्व्ड, सो प्रॉफिट ट्रांसफर टू द रिटेलर्स फ्रॉम द फार्मर्स। Next is no adequate profit of large storage. As per the capacity of storage, no goods quantity are received, so places are remain empty, but the cost of providing security is the same, and on selling that much cost, it can't be recovered, right? Next is if keeping goods in ordinary building for storage, then it can be received by the insects. Yes, all the warehouses or storages, whether of public, private, or government, are not up to mark. And if keeping the goods at an ordinary place, then the insects can approach to the goods. Then you are not be able to sell those goods. So if the storage is not up to mark, we cannot generate a high much profit. Next is high cost. When we keep our goods in storage houses, so cost will increase because full capacity are not able to utilized. So cost will increase as for sure. Next is not providing loan by storage house on receipt. If the storage houses provide loan, so all the farmers can keep their goods in the warehouse. So farmers can take loan and repay time to time by releasing goods and selling them and repaying the loans. So they can earn more and more profits. तो ये तो बात होगी हमारी भंडार यानी कि स्टोरेज निगम की आलोचनाएं की बात करें। अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें तो मेरे पास ये 5 पॉइंट आते हैं जिसको हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है मेरा सजेशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ स्टोरेज हाउसेस। इसमें फर्स्ट आ जाता है ओपनिंग स्टोरेज हाउसेस एट रूरल एरियाज। इसका मतलब स्टोरेज की ज़रूरत हमेशा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए पड़ती है। तो अगर हम गांव में वेयर हाउस या कोल्ड स्टोरेज खोल दें, सो इट विल बी ईजी बिकॉज दे कम इन सिटी एरियाज फॉर द स्टोरेज, सो कॉस्ट फॉर देम इज इंक्रीज्ड। नेक्स्ट इज एडवर्टाइज फैसिलिटी ऑफ स्टोरेज। Goods are made in the industry. For them, full advertisement is done. But the food crops grown by the farmer, for them, no advertisement for them. Advertisement should be done so that they could also know about the warehouses, so they can store and can earn profits. Next is all corporations should open warehouse of their own on not on rent. It means all the corporations should make their own houses up to mark building, neither take on the rent at all. मीन्स सभी कॉरपोरेशंस को अपने ओन बिल्डिंग अप टू मार्क बनानी चाहिए ताकि उन्हें किसी भी वेयर हाउसेस को रेंट पे न लेना पड़े। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन कॉस्ट। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड सब्सिडीज टू द फार्मर्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी
So in the same way, government should give 25% subsidy on luggage kept in the warehouses, so farmers can keep easily their goods in the warehouses as well. Last is farmer can take loan from warehouse to keep the goods. Means every farmers provide loans and advances to the every warehouse provides loan and advances to the farmers for keeping their goods in the warehouses, and farmers as they pay they can able to release their goods. सो दीज आर द सजेशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ स्टोरेज हाउसेस, मतलब कि कैसे हम अपने स्टोरेज यानी भंडार निगम को एक अच्छे तरीके से उन्नति के सुझाव दे सकते हैं। तो ये हम थे हमारे 5 पॉइंट। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है सजेशंस टू मेक गुड वेयर हाउसेज और कोल्ड स्टोरेज, मतलब शीत संग्रहालय यानी कि कोल्ड स्टोरेज के सुधार के लिए सुझाव। पहला आता है इसमें लोन टू गवर्नमेंट। लोन टू गवर्नमेंट का मतलब होता है कोल्ड स्टोरेज आर इन द प्राइवेट सेक्टर्स। कोल्ड स्टोरेज जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स में, सो दे डू नॉट मेक इट अप टू मार्क बिकॉज इट नीड्स फॉर जस्ट 4 to 5 मंथ। इसकी जो ज़रूरत पड़ती है हम लोग को वो 4 से 5 महीने के लिए पड़ती है। सो दे स्पेंड लेस अमाउंट, सो इट इफ़ गवर्नमेंट प्रोवाइड लोन टू देम एंड मेक प्रोग्रेस, सो अप टू मार्क कोल्ड स्टोरेज कैन ऑल्सो बी मेड। सो लोन बाय द गवर्नमेंट शुड बी गिवन। सेकेंड, अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट एंड वाटर ऑफ लो कॉस्ट। अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट एंड वाटर at low cost means cold storage need lights and water, so if they get in commercial rate, so their development can be easily done. Next is exempt from income tax if they treated as commercially, यानी कि जो वेयर हाउसेस है अगर उसे हम कॉमर्शियली ट्रीट करें, सो देयर लैंडलॉर्ड शुड बी गिवन रिलीफ इन द इनकम टैक्स, सो ही कैन गिव रिलीफ टू द फार्मर्स ऑल्सो। अगर जो वेयर हाउसेस का मालिक है अगर उसे इनकम टैक्स में हम थोड़ी सी छूट दे दे तो वो फार्मर्स को भी वेयर हाउसेस को यूज़ करने के लिए थोड़ी सी छूट प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ विलेज एरियाज। यस, अवेलेबिलिटी एट विलेज एरियाज, इसका मतलब हुआ कोल्ड स्टोरेज आर नीडेड इन विलेज एरियाज बट वी आर नॉट हैविंग the cold storage in the village areas, so government should provide loans, electricity and etc, but on giving them license government should keep a condition to establish warehouses or storage cold storage at village areas। मतलब गवर्नमेंट जब भी किसी भी कोल्ड स्टोरेज या वेयर हाउस का लाइसेंस दे तो उसके यहाँ एक शर्त रख दे कि आपको अपना वेयर हाउसेज या कोल्ड स्टोरेज हमेशा विलेज के एरिया में ही खोलना है, देन ओनली लाइसेंस विल बी प्रोवाइडेड टू यू। तो इससे क्या होगा कि कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसेस की जो अवेलेबिलिटी है विलेज एरियाज़ में वो आसानी से फुलफ़िल की जा सकती है। नेक्स्ट है मेरा एडवर्टीज़मेंट यानी कि प्रचार। गवर्नमेंट वांट टू डू एडवर्टीजमेंट रिलेटेड वेयर हाउसेस एंड कोल्ड स्टोरेज इन द विलेज एरियाज, सो गवर्नमेंट सेंड देयर एग्जीक्यूटिव्स एंड एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर्स टू एडवर्टाइज फॉर दैट। मतलब सरकार हमारा हमेशा यही चाहती है कि जो वेयर हाउसेज और कोल्ड स्टोरेज है उसका विलेज एरियाज़ में प्रचार हो प्रसार हो, तो अपने ऑफिसर्स एम्प्लॉयज़ या एग्जीक्यूटिव्स को वहाँ पे भेजती है एडवर्टीजमेंट्स करने के लिए। ऑल ऑफिसेस आर इन द सिटी, सारे ऑफिस जो हैं इसके वो वेयर हाउसेस के वो सिटी में ही हैं। सो ऑफिसेस जस्ट मेक अ कॉल टू द बिग फार्मर्स एंड नॉट कॉल टू स्मॉल फार्मर्स। वो भेजती क्यों है? क्योंकि जितने भी वेयर हाउसेस है उसकी ऑफिसेस हमेशा सिटीज़ में रहती है, तो जो ऑफिसर उस ऑफिस में जो मेन हेड बैठा है वो हमेशा बिग फार्मर्स यानी कि बड़े स्तर के लेवल के किसानों को सिर्फ कॉल देता है और छोटे स्तर के किसानों को कोई भी मीटिंग में नहीं बुलाता। अगर कोई मीटिंग भी होती है फार्मर्स की तो वहाँ पे बड़े फार्मर्स को ही बुलाया जाता है, छोटे फार्मर्स को नहीं बुलाया जाता है, और बड़े फार्मर की ही वेलफेयर की ही बात की जाती है। सो मीटिंग शुड बी डन इन द विलेज एरियाज़ ऑल्सो। तो विलेज एरियाज़ में अगर ये प्रचार पहुँचेगा कि गवर्नमेंट वेयर हाउस दे रही है तो वो लोग भी इसके लिए जागरूक अपने आप को करेंगे। तो ये थी बात हमारी एडवर्टीजमेंट्स की, जो कि सजेशंस टू मेक गुड वेयर हाउसेज एंड कोल्ड स्टोरेज के अंतर्गत आता है। So this is the full video regarding the storage, which was the second element of need of resources for fulfillment of physical supply of goods। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग की। सो तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल मनीष कुमार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग BCom। थैंक यू।